Hi everyone, very good evening and welcome to my Insta Live. Today I am going to be doing the live with a dear friend of mine, a childhood friend of mine actually. And just let me connect with her in one moment. Yes, Amir, I do take live classes. Just give me 2 minutes. I'm trying to patch in Preeti and hi Aarti. Hi Deepak Chawla. Hi Saurabh. How are you? How did your beer chugging go? Hi Farhad. Hi Deepti. Yes, I will always support you because you are very sweet. Deepak Chawla, agenda for today's live session is that I have invited my dietitian friend Preeti and we are going to discuss what all can you eat and drink if you want a good looking healthy skin and if you want to get rid of skin issues like acne, pigmentation, enlarged pores, premature sagging of skin, etc. So that is the topic. Okay, Preeti, please quickly introduce yourself to the audience because बहुत time already खर्चा हो गया. Yeah, I'm Preeti Gupta, dietitian, and practicing since 16 years in this field. And now I've done my MSc from food and nutrition from IHE Institute of Home Economics, and then worked under Dr. Shikha Sharma. Then started my own clinic. So over to Deepika. Okay. Yeah. Okay. So Preeti, yes, Rafat, I'm good. Thank you so much. And first question that I'm going to ask you is, please tell the people who have joined today how important is it? What role does the diet play in a healthy, good-looking skin? Skin. Yeah. We all know that the diet is a major thing that we have to take it from our stomach. We have to eat. Then only it comes to the digestive system, and then only the nutrients get absorbed because of this. So when it is absorbed, then the nutrients flow into the blood, and there the blood circulation is happened, and everything, the nutrients absorption is there, and then only the skin is healthy, and it is naturally seen on the face also that your skin is glowing if you are eating healthy food. So everything is important, like your perfect balanced way. Then only we can get that. All right. So now there are several common issues that people face these days. Like for example, pigmentation or premature wrinkles or enlarged pores, you know. Yeah. So can you tell us how do we change our diet or what can we add or subtract from the diet so that these issues get resolved? Solve the issues. Yeah. Okay. Yeah. So one by one, we can take all the topics. So first of all, we'll take pigmentation. When we take about pigmentation, so pigmentation is because of melanin when it increases in our blood. तो जब वो आपका increase होता है तो आपका dark spots increase हो जाते हैं. And then अगर आप over exposure to sun भी जाते हैं तब भी आपका wrinkles या mainly आपका pigmentation increase होती है. Even hormonal changes या menstrual जब आपका complete हो जाता है after 40, जब हमारी साइकिल बंद होने लग जाती है तब भी हमारा ये बहुत कॉमनली देखा जाता है. तो जो हम कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, दैट इज वी कैन इंक्लूड विटामिन सी इन आवर डाइट. तो सिट्रस फ्रूट्स वी कैन इंक्लूड. देन ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए. ओमेगा 3 आपका नट्स एंड सीड्स में जाता है. देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर इंपॉर्टेंट. ये आपका विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं करने देता ये. देन आपका इसमें केल है, स्पिनच है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगेन आप रेड ग्रेप्स भी इंक्लूड कर सकते हो. और कोकोनट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कोकोनट वाटर आप यूज कर सकते हैं. अदरवाइज कोकोनट ऑयल भी अगर आप अप्लाई भी करते हैं स्किन पे, दैट इज ऑल्सो गुड. सो बीटा कैरोटीन ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन दैट in the diet for this pigmentation. So citrus fruits, green leafy vegetables, and some other fruits like grapes and coconut. And nuts and seeds. For pigmentation, okay? For pigmentation. So Amir is asking, what about dark circles? We can do the same changes in the diet and that will help in dark circles. Yeah. But we need at least healthy sleep also. For the dark circles, it is not only these things, but the sleep is important and stress has to be reduced. Otherwise, the dark circles won't eliminate. So we need to do that. So Amir, I think that answers your question. You need to improve your sleep quality
and we are going to talk about that later in the session. So you need better sleep. You definitely need to add all these things like citrus fruits and green leafies and grapes and coconut, and that should help in your dark circles. Okay, let's go to enlarged pores and acne. Yeah, both are the problems faced by people with oily skin like me. Yeah. When it is the oily skin, so that happens when we eat too much of sugary foods or starchy foods or sometimes junk foods also. So because the thing is that insulin level इसमें क्या होता है, increase हो जाता है. जब insulin level आपका spike करता है तो वो कहीं ना कहीं cells को damage करना start कर देता है और वहां पे inflammations होने लग जाते हैं जो, और फिर इसमें आपको रेड स्पॉट्स आएंगे और धीरे धीरे वो पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो आपके पोर्स को भी ओपन कर देता है. तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगेन उसके लिए भी कई चीजें तो सिमिलर ही है. ओमेगा 3 अगेन आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश भी यूज कर सकते हो, फैटी फिश, सैल्मन फिश, वो बहुत अच्छा सोर्स है. एंड अदरवाइज आप नट्स एंड सीड्स जैसे आपका हेजल नट हो गया, आलमंड हो गए, वॉलनट्स हो गए, देन आपका पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी बहुत अच्छा रिच रोल प्ले करते हैं. देन विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, तो विटामिन ई भी आपको जरूर लेना चाहिए. अगेन वो सिमिलर ही फूड्स होते हैं. विटामिन बी की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर द सपल स्किन. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एग्स कर सकते हो आप, स्पिनच अगेन इंक्लूड कर सकते हो. और मेनली एक्ने को और इसको करने के लिए सबसे मेजर थिंग होती है वाटर थेरेपी. तो अगर आप वाटर जितना आप पीते हो उतना आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो टॉक्सिसिटी रिमूव होगी तो अपने आप ही स्किन ग्लो करेगी और एक्ने अपने आप ही रिड्यूस होते चले जाएंगे. तो मेनली हमें यही करना चाहिए. और स्टमक क्लींजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो एक्ने अपने आप ही सबसाइड करते जाते हैं. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. तो वो हम कर सकते हैं 2-3 चीजें ये सब. तो would you suggest taking wheatgrass or wheatgrass juice? Yeah, that is also very good. Aloe vera juice is also very good. You can take wheatgrass juice also, aloe vera juice also. Alternate days you can change the juices also. Kale juice भी आप ले सकते हो अलग से, green जो आपका cucumber kale mix करके. तो these are all detoxifying juices also and skin के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये. Great. We can add that. So people who have acne and enlarged pores, please stop eating starchy, sugary food. Please stop eating junk food, and make your diet rich in fiber. That's the gist of it. Eat more fiber. You can take not like supplement, but you can take wheatgrass juice and aloe vera and eat healthy. Clean your gut system. By the way, smoking problem. Smoking problem. Sorry, Amir, I didn't understand that. Is that a question or? Yes, please elaborate. Okay. Okay, let's go to premature wrinkles and dull skin. I think we can cover these two together, right? Yeah, not a problem. Because I've said, no, everything is related. When we talk about skin, na, so everything is related. अगर हम dull skin और premature wrinkles की बात करते हैं, तो again under exercise, जो लोग बिल्कुल exercise ही नहीं करते, and उनकी blood circulation बहुत weak हो जाती है. करेगा blood, तो वहाँ पर your video got paused again. आ रही है बस? हाँ. अब is it okay? ओके, सो उसमें क्या होता है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे और वो आपको डल स्किन कर देगा, या फिर प्रीमेच्योर रिंकल्स हो जाएंगे, या फिर कोई अगर ओवर बिकॉज एक्सेसिव वेट लॉस, तो वो एक्सेसिव वेट लॉस एकदम जल्दी हो जाए. आ रहा है बस? अच्छा, एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है, या फिर बहुत जल्दी जो लोग क्रैश डाइट्स पे चले जाते हैं, they are not eating healthy, just they want to take की खाली अपने कुछ भी नहीं खाया, जस्ट भूखे पेट होता है ना, स्टमक एम्प्टी स्टमक अगर आप रहोगे तब भी आपका बहुत जल्दी स्किन पे दिखेगा, तो वो डल स्किन हो जाती है. तो ये सब चीजें हम आराम से रिसॉल्व कर सकते हैं अगर हम अगेन अपनी डाइट को बैलेंस्ड और हेल्दी बना ले. तो उसके लिए भी हमें विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगेन सिट्रस फ्रूट आ जाते हैं इसमें. विटामिन डी की इसमें बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आप 10 मिनट सनलाइट में आप रहते हैं ना रोज सुबह, तो वो भी आपके अंदर से पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है. फिर उसके बाद हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आई टोल्ड यू. अगेन विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नट्स एंड सीड्स में आ जाता है वो आपका. देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसलिए ओवरऑल जब हम हेल्दी डाइट खाते हैं तो हमारे लिए चाहे वो डल स्किन हो, प्रीमेच्योर रिंकल्स हो, एवरीथिंग विल रिजॉल्व. तो अगर टमाटो भी आप कह सकते हैं, टमाटो बहुत अच्छा है, लाइकोपीन होता है उसके अंदर, बीटा कैरोटीन में. स्वीट पोटैटो भी अगर आप उसको भून के खाते हैं, शकरकंदी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. तो आप ये सब छोटी छोटी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे फॉर प्रीमेच्योर रिंकल्स.
Okay, let me summarize it for you all. So basically, फंडा वही है कि आप हेल्दी खाना खाइए, बहुत ज्यादा देर भूखे मत रहिए, और अगर आपको वेट लॉस करना है देन गो द राइट वे. ओके, डोंट डू अ क्रैश डाइट, क्योंकि सडनली आप फैट लूज कर देंगे तो स्किन के नीचे का जो फैट का लेयर है वो एकदम से चला जाएगा और स्किन को टाइम नहीं मिलेगा अडेप्ट करने के लिए, तो वो लटक जाएगी. ओके, सो जब आप फैट लॉस करते हैं तो गो स्लो, डू इट द राइट वे. 3 to 4 kilos a month is ideal. And also don't इसमें भी आई थिंक स्लीप क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है ना. इफ योर स्किन इज शोइंग साइंस ऑफ एजिंग, स्लीप एंड साइंस ऑफ एजिंग अगर दिख रहे हैं तो आप अपनी स्लीप क्वालिटी. ओके आमिर, नाउ आई अंडरस्टैंड. प्रॉब्ली यू वर सेइंग दैट यू हैव अ स्मोकिंग प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू हैव डार्क सर्कल्स, विच इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि निकोटीन जो होता है वो स्लीप को अफेक्ट करता है एडवर्सली. यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज निकोटीन कीप्स यू अवेक. तो आप अपना स्मोकिंग कम करिए, फॉर योर लंग्स ऑल्सो, फॉर योर स्किन ऑल्सो. Okay, I think we covered most of the common problems of skin. Now let's move on to some homemade hacks that we can prepare, that we can apply on the skin if people have these issues. So say for example, for pigmentation, what do you suggest? Yeah, for the pigmentation we can have like curd, besan, turmeric water and aloe vera. When we mix all these things together and apply on our face, that will help to reduce your pigmentation, because it will act as a scrub also, because curd will give you vitamin E and essential components which are important. Again, besan is very good. तो ये सब मिलाकर जब पैक लगाओगे and then you scrub it and then wash with the warm water or cold water, then it will help you in that. Now comes the acne. एक्ने का भी पैक हम बता देते हैं कि उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पोटैटो जूस को हम लेते हैं, पोटैटो को ग्राइंड करके जब हम उसका जूस निकालते हैं, मिक्स विद द लेमन एंड विटामिन ई आप उसके अंदर डाल सकते हैं. अदरवाइज, इज इट क्लियर? Yes, it's breaking in between, but I can understand. Potato juice with lemon and vitamin E, right? Vitamin E और एलोवेरा. विटामिन ई की जगह अगर आपके पास नहीं है तो एलोवेरा ऑल्सो यू कैन इजीली यूज. अच्छा, अब आता है हमारा डल स्किन का पैक. अगर हम देखते हैं तो उसमें हम मलाई यूज कर सकते हैं, अगेन विटामिन ई का सोर्स आ जाता है. एंड राइस वाटर जैसे आप यूज कर सकते हैं, जो हम मांड का पानी बोलते हैं, चावल को जो हम करते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड. और उसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आपके डल स्किन को एकदम से नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है. बट अगेन ये सब पैक्स तो एक सिंपल रेमेडी है. जब तक हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को सही नहीं करेंगे या स्ट्रेस रिड्यूस नहीं करेंगे, स्लीप नहीं करेंगे, तो ये भी वर्क नहीं करेंगे. इट इज नॉट लाइक कि आपने पैक लगा लिया और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो दिस आर स्मॉल रेमेडीज. हाँ, और रिंकल्स के लिए क्या पैक है अपने पास? हाँ, रिंकल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर कुकम्बर को ही फ्रिज में आप उसका जूस निकाल के विद द पल्प ओनली आप उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देते हैं, देन वी यूज दैट आइस क्यूब. उस आइस क्यूब के अगर आप फेस पे लगाते हैं तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग रिंकल्स ऑल्सो. तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं. अगेन आप पपाया भी ले सकते हैं, पपाया को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. तो ये सब आपके रिंकल्स को काफी कम करने में हेल्प करते हैं. So, किसी भी फ्रूट को फ्रीज करके एंड बिकॉज इट हैज टू बी इन द आइस फॉर्म. आइस फॉर्म में करेंगे तो उसकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ेगी. वेरी इंटरेस्टिंग. तो पीपल हु आर फेसिंग अर्ली रिंकल्स और जिनके थोड़े बहुत रिंकल दिखने शुरू हो गए हैं, वो प्लीज फ्रूट्स को फ्रीज करना शुरू करिए एंड पुट दैट ऑन योर स्किन. So okay, moving on to the next bit. So अगर ये सब चीजें नहीं है अवेलेबल किसी के पास, मान लो डाइट भी नहीं हो पा रही ढंग से, तो आप क्या सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हो इन ऑर्डर टू कीप अ हेल्दी स्किन? सप्लीमेंट्स में हाँ, विटामिन ई के आते हैं, एवियन के सप्लीमेंट्स आते हैं दैट यू कैन इजीली हैव. बट अगेन विटामिन ई क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है तो हमें रेगुलरली नहीं लेना चाहिए. अगर हम डायरेक्टली लेते हैं विद द वाटर तो ये आपका फिर एक दिन छोड़ के आप ले सकते हो. अगर अदरवाइज या फिर आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करो तो वो आपका मेटाबोलाइज हो जाता है. देन आप कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं. अगेन उसमें क्योंकि ए डी ई तीनों ही पाए जाते हैं विटामिन, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. अच्छा, सनलाइट तो इज अ नेचुरल सोर्स अगर आप वो लेते हैं तो. और विटामिन सी की लिम्सी की टैबलेट्स भी आती है. और एक कॉलेजन सिंथेसिस जो आप बता रहे थे, तो वो दैट ऑल्सो दे कैन इंक्लूड, क्योंकि वो विटामिन सी और आपकी स्किन को जनरेट करने में हेल्प करता है, कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प करता है. That also you can include. So to summarize that, you can supplement your diet. अगर आपसे बिल्कुल भी डाइट नहीं हो पा रही है, आप फ्रूट्स भी नहीं खा पाते और वेजिटेबल्स खाने के मामले में भी थोड़े से आप
चोरी कर जाते हैं, वो बहुत लोगों के साथ होता है प्रॉब्लम। तो in that case you can take supplements like Evion for vitamin E, Lim-C for vitamin C, Sunlight for vitamin D, and you can also take collagen supplement. So GNC का जो collagen supplement है मैं personally भी ले रही हूँ, and it is a very good supplement. So I can definitely recommend that collagen supplement for a healthy skin, क्योंकि हमारी skin जो है वो collagen से बनी होती है. So if your diet is lacking in collagen, so for instance I am a vegetarian, मेरी diet में collagen naturally थोड़ा कम ही रहेगा, और body कोलाजन बनाना बंद कर देती है 25-26 साल की उम्र के बाद। तो अगर आप सप्लीमेंट करेंगे उसको तो अच्छा रहेगा, राइट? True. Okay, let us discuss quickly 5 essential food items that are essential for a healthy, good-looking skin. Okay. Now let me see that first is the again citrus fruit सबसे बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि एक ही फ्रूट का नाम लेते हैं विटामिन सी के लिए, तो सबसे अच्छा आंवला है। तो आंवला आप आराम से आप इंक्लूड कर सकते हो कि विटामिन सी से बहुत रिच होता है ये। देन आप वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो टोमेटो वगैरह ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन थर्ड थिंग इज द नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स आप इंक्लूड करते हो तो विटामिन ई ऑटोमेटिकली आपकी डाइट में आ जाता है। देन कम्स द होल ग्रेन्स, फाइबर हमें इंक्लूड करना है, तो होल ग्रेन्स हमें चाहिए, जैसे बार्ले हो गया, बाजरा है, देन किनोआ यू कैन इंक्लूड। तो ये सब आपके रिच इन फाइबर होते हैं, तो आपका स्टमक अपने आप ही क्लियर रहेगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड देन प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, वो तो हम सबको ही पता है। तो प्रोटीन्स के लिए हम एग भी यूज कर सकते हैं, होल पल्सेस यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं, जो भी जिसको अच्छा लगता है। बट डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा स्किन के लिए एक होता है ना, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अभी नहीं इतना सही रहा, तो इसलिए देखना चाहिए कि जिसको सूट कर रहा है दे कैन यूज इट डेयरी प्रोडक्ट्स, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो हम ये वाली कर सकते हैं यूज। ओके, ग्रेट। सो पीपल हु हैव स्किन इश्यूज, ये 5 चीजें आपके डाइट में डेफिनेटली होनी चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स, अगर आप बहुत सारे सिट्रस फ्रूट नहीं खा सकते तो सिर्फ आंवला खाइए 1 रोज। होल ग्रेन्स खाइए, क्योंकि फाइबर चाहिए बॉडी को। आपका गट जब क्लीन रहता है तो आपकी स्किन भी क्लीन दिखती है। प्रोटीन खाइए बहुत सारा, क्योंकि आपकी स्किन प्रोटीन से बनी हुई है, तो जब तक आप प्रोटीन डालेंगे नहीं शरीर में तो स्किन कैसे रीजनरेट होगी? ओके, इट इज वेरी बेसिक साइंस। तो प्रोटीन डालिए शरीर में। प्रोटीन का जो भी सोर्स आपको पसंद आता है, इट कुड बी दाल, इट कुड बी फिश, इट कुड बी वॉट एवर, बट डेयरी इंटेक थोड़ा संभाल के, क्योंकि डेयरी कई लोगों को नहीं सूट करती। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। ओके, so I think we covered everything, and I was going to demonstrate some facial exercises that you can do, because face की जो muscles हैं वो भी muscles ही हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बाकी की पूरी बॉडी स्ट्रेंथन कर रहे हैं लेकिन आप फेशियल मसल्स को भूल जा रहे हैं। तो सबसे गुड न्यूज है जो वो ये है कि जब आप वेट्स लिफ्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी की सारी मसल्स को यूज करते हैं, इंक्लूडिंग योर फेशियल मसल्स। तो जब आप वेट लिफ्ट करते हैं उस वक्त आप अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। व्हेन यू एक्सेल आउट, then also you use your facial muscles. So make sure that when you lift the weight, you exhale using your cheek muscles. Okay. And then there is a video that I have already shared on my profile, which is all about facial yoga. So I don't want to be repetitive, but this is something that you can do with closing your nostril and inflating your cheeks completely with the air. And then you lock your chin into the collarbone. Okay, so what this does is it makes your face muscles work. So you have to hold that air inside your mouth till the time your face actually starts a little hurting. जैसे मसल सोरनेस होता है उस किस्म का सोरनेस जब तक आपको फेस में फील होगा तब तक आपको उसको होल्ड करके रखना है। The second one is the fish face, in which you pull the cheeks inward. So it's the opposite movement of that, like this. Okay, and you have to do it multiple times. Again, you should feel that your muscle is getting slightly sore by that movement. So that will give you a nice shape over here. Over here. And then you can do a lot of backward bending and then chewing movement with your jaw. And that is going to cover this area of your neck where the wrinkles actually start coming when you age. So your skin starts sagging from here. So if you lift your face up and do the chewing or mastication movement,
that is going to help in giving you a nice, well-defined jaw. So those are very, very basic 3 exercises that you can do. Okay, inflating your face and locking your chin, pulling your cheeks in, doing the fish face, and mastication, chew like a cow. Right. So keeping it short and sweet, I think we covered everything that we intended to. And we can quickly check if we have any questions. Hi, Nishant. So people, we are discussing skin issues and how to tackle them with a healthy diet and some exercises that you can do to keep your face looking young. If you have any questions regarding the same, please feel free to ask. Mancha, वेट लॉस के ऊपर नहीं है आज का लाइव, बट मोटा मोटा जो हमने डाइट पे आज बातें की है ना, अगर आप वो चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे वेट लॉस भी होगा. इफ योर डाइट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन सी, it is also going to help in weight loss. Then we answered the dark circle question, and yeah, I think that's about it. I don't see any other questions. Hi, Ankur. So, okay. Thank you so much for coming over, Preeti. And thank you, Deepika. It was my pleasure only to have a live discussion. So, very informative session. Thank you for sharing the knowledge. And I'm sure people are going to have questions. So, I'll just tag you in the video and you can answer the question. Okay? Not a problem. Not a problem. So, people, this video is going to be available on my profile. I'm going to share it. And you can watch it whenever you have whenever you have time, and implement these things in your life. See how your skin changes. All the best, everybody, and take care. Bye-bye. Bye, Preeti. Bye. Bye-bye. Okay, so that was today's live with my school friend Preeti, and I hope you liked today's live despite of the initial hiccup wherein we were not able to join. And I'm going to do a live soon. Let's see when do I do that, but very, very soon. I'll see you again. Till then, take care of yourselves and eat healthy. Bye-bye.